This the types of speed. First, uniform speed. As we discussed in uniform motion, if an object covers equal distance in equal interval of time. If an object covers equal distance in equal interval of time, then speed is said to be uniform. Means A, B, in between time small distances cover किए. यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया बेटा ये 2 मीटर है, टाइम 1 सेकेंड, अगेन डिस्टेंस 2 मीटर, टाइम अगेन 1 सेकेंड, टाइम डिस्टेंस 2 मीटर, टाइम 1 सेकेंड, डिस्टेंस अगेन 2 मीटर एंड टाइम इज 1 सेकेंड. मीन्स एवरेज सेगमेंट ऑफ 2 मीटर particle takes 1 second. Means equal distance to 2 meter and time taken is again 1 second, and this type of speed is known as a uniform speed. If an object covers equal distance, if an object covers equal distance in equal interval of time, then speed is said to be uniform speed. Clear beta? Next one, non-uniform speed. Or we can say varying, which is not constant, varying speed. If an object covers unequal distance in equal interval of time. If an object covers unequal distance in equal interval of time, or we can change the statement. If an object covers equal distance in unequal interval of time, then speed is said to be non-uniform speed. For example, again consider one line motion. First position A and B. First second 2 meter. Next 1 second it is 3 meter. Next 1 second it is 3.5 meter. Next 1 second it is 1.5 meter. Means unequal distance in equal interval of time. Clear? Unequal distance in equal interval of time, then speed is said to be non-uniform. Clear? What is first? A uniform speed. If an object covers equal distance in equal interval of time, then this type of speed is known as uniform speed. And if an object covers unequal distance इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे हमने टाइम स्पेन कितना कंसीडर किया बेटा 1 सेकंड. 1 सेकंड में पहला सेगमेंट कितना 2 मीटर का, नेक्स्ट जो सेगमेंट है 3 मीटर, नेक्स्ट सेगमेंट जो 3.5 मीटर. मींस अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है पार्टिकल एक सेम टाइम इंटरवल में, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा. क्लियर? नेक्स्ट वन, average speed. What is average speed? It is the ratio of total distance covered to the total time taken. It is the ratio of total distance covered to the total time taken. Means V average equal to total distance divided by total time. Total distance divided by total time. Distance को कहाँ मेजर करेंगे बेटा? What is the unit? Meter. And time again in second. Then what is the unit of average speed? मीटर पर सेकंड. अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ बेटा. आपका जो घर है स्कूल से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, और स्कूल की जो बस है हमने कंसीडर किया बेटा 7:30 से आपके स्टैंड से चलती है और ठीक 8 o'clock स्कूल में पहुंच जाती है. तो टोटल टाइम उसने कितना लिया बेटा आपके पास? 30 मिनट.
और टोटल डिस्टेंस हमने कितना कंसीडर किया बेटा आपके पास 30 किलोमीटर। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मींस 1 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर। अब यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं कि बस जो वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जब वो ऑन रोड होती है तो बेटा उसकी स्पीड फास्ट होगी, मींस वो 1 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और वो विद इन विलेज है अपने पास, वो गांव की गलियों के अंदर है, तो वहां पे क्या होगा बेटा 1 मिनट में वो कम डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकती है। यहाँ पे हमें सेगमेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम की बात करेंगे। ये जो वैल्यू आएगी ये क्या कहलाएगी आपके पास एवरेज स्पीड कहलाएगी। क्लियर। व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम taken. It is the ratio of total distance covered to the total time taken. Means average speed is the total distance divided by total time. And next is instantaneous speed. What is instantaneous speed? Speed at a particular instant of time. Speed at a particular instant of time. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, एवरेज स्पीड के लिए तो लिखते हैं VAV इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। व्हाट इज डेल्टा x, डेल्टा जो सिंबल है बेटा टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, मींस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे हम इंस्टेंट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, V instant इक्वल टू dx by dt। dx किसको शो करेगा बेटा, स्मॉल डिस्टेंस को, ट्रेवल्ड इन ए स्मॉल इंटरवल, स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब मैं यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सा आपको एग्जांपल देके चलता हूँ। आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, जिस भी व्हीकल में आप चलते हैं, हम बाइक का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। बाइक के आगे हैंडल के बीच में एक मीटर लगा होता है, वो उस मीटर में क्या होगा आपके पास, देखो किस तरीके की रीडिंग्स आपने ऑब्जर्व की होंगी। यहाँ आपके पास नीडल है, रीडिंग्स लगी हुई है, डिविजन है, और बीच में क्या आपके पास इस तरीके से आपको डिजिट्स भी दिखाई देंगे। ये क्या है बेटा आपके पास ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करेगा, डिस्टेंस को मेजर करता है, और जो भी नीडल है पर्टिकुलर, हमने मान लिया जिस भी इंस्टेंट के ऊपर हम बात करें, यहाँ पे ये नीडल के यहाँ पे बेटा 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर है, तो इस इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। What is instantaneous speed? Speed at a particular instant of time. जिस इंस्टेंट के ऊपर हम मीटर को रीडिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वो जो रीडिंग है वो क्या कहलाएगी आपके पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट मोमेंट के ऊपर ये कम भी हो सकती है, नेक्स्ट मोमेंट के ऊपर ये ज्यादा भी हो सकती है। जब हम एवरेज की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम है, और इंस्टेंट की बात करेंगे बेटा, इंस्टेंट का मतलब होता है कोई भी क्षण, उस क्षण के ऊपर जो स्पीड होगी, यानी नीडल जो शो करेगी, जो पर्टिकुलर, अदरवाइज आपके पास डिजिटल मीटर है, वहां जो रीडिंग शो होंगी वो क्या कहलाएगी उस मोमेंट के ऊपर की इंस्टेंटेनियस speed. Clear? Speed at a particular instant of time is known as a instantaneous speed, and all type जो भी आपके पास है स्पीड, सब में यूनिट क्या रहेगी आपके पास, मीटर पर सेकंड। क्लियर। पहला क्या पढ़ा आपने, स्पीड। व्हाट इज स्पीड, इट इज डिफाइंड एज द रेट of change of distance, means distance covered per unit time. Next one, uniform speed, equal distance if an object covers equal distance in equal interval of time. Non-uniform speed, if an object covers इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोलते हैं, या क्या कह सकते हैं बेटा हमें, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या था बेटा आपके पास, एवरेज स्पीड। जब भी हम एवरेज की बात करें हम क्या करेंगे, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, मींस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और जब हम इंस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे इंस्टेंट का मतलब क्या बेटा, पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे मैंने आपको 2 मीटर शो किए हैं। जो भी ओडोमीटर है, ओडोमीटर किसको शो करेगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को शो करेगा। स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड को मेजर नहीं करता, वो किसको मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि स्पीडोमीटर मेजर्स व्हाट फिजिकल क्वांटिटी, स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉट स्पीड। क्लियर? ओके। आफ्टर स्पीड वी विल डिस्कस the next term, velocity. Velocity is the vector form of speed, simply we can say. In speed we use the distance traveled per unit time. In this case we use displacement. What is velocity? It may be defined as the displacement covered per unit time, or it may be defined as the rate
of change of displacement. Simply, what is velocity? Velocity equal to displacement covered per unit time, or we can say time taken. Displacement covered per unit time. स्पीड में क्या था बेटा आपके पास, यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया था वो था डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या था अपने पास, स्केलर क्वांटिटी थी, तो स्पीड भी क्या बनती है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, वेलोसिटी भी क्या बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द यूनिट, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे बेटा मीटर में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, एंड व्हाट इज एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड। क्लियर, व्हाट इज एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड। व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड per unit time. It may be defined as a also rate of change of displacement, simply velocity, displacement covered to the time taken, or more simply we can say it is the ratio of displacement covered to the time taken. Clear? Next one, again types of velocity. First, uniform velocity. Definition is quite same. If an object covers equal displacement, वहां पे क्या यूज किया था बेटा हमने, डिस्टेंस, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ time. If an object covers equal displacement in equal interval of time, straight line object है, पहले हमने कंसीडर किया फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल करता है, नेक्स्ट में फिर 1 मीटर ट्रेवल करता है, नेक्स्ट में फिर से 1 मीटर ट्रेवल करता है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा उसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। If an object covers equal displacement in a equal interval of time. Clear? If an object covers equal displacement in equal interval of time. And same next one, non-uniform velocity. Non-uniform velocity. What is non-uniform velocity? If an object covers unequal displacement, unequal displacement in equal interval of time. Non-uniform means variable. Unequal displacement in equal interval of time. We can change the statement, equal displacement in unequal interval of time, and this will be the same, non-uniform velocity. पहले में हमने कंसीडर किया फर्स्ट सेकंड में पार्टिकल 1.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, नेक्स्ट सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, नेक्स्ट सेकंड में फिर से 1.5 कवर करता है, नेक्स्ट सेकंड में फिर से 1 मीटर ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे बेटा आपके पास है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, दोनों डेफिनेशन सेम है। जो हमने स्पीड में वर्ड केवल फर्क आपके पास इतना ही, जब भी हम यहाँ पे स्पीड पढ़ेंगे यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डिस्टेंस, और जब हम वेलोसिटी पढ़ रहे तो बेटा यहाँ पे क्या यूज करके चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बाकी की सारी डेफिनेशंस क्या आपके पास सेम ही कंसेप्ट है। क्लियर, ओके। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट टाइप, एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? सेम लाइन जो कि हमने क्या पढ़ा था बेटा, एवरेज स्पीड में क्या पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। It is a ratio of total distance to the total time. Similarly, यहाँ पे क्या करना बेटा, वेलोसिटी में डिस्टेंस वर्ड को किससे रिप्लेस करना हमने, डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टू टोटल टाइम taken. Again, velocity V average equal to total displacement
divided by total time delta x divided by delta t, delta x divided by delta t। डेल्टा वर्ड किसको शो करेगा बेटा? टोटल को। डिस्टेंस को हम किस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। टाइम को हम किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। अगेन यूनिट इज मीटर पर सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट वन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड में कहा था, सेम आपके पास v इंस्टेंटेनियस equal to dx by dt. What is instantaneous velocity? Velocity at a particular instant of a time. Velocity at a particular instant of a time is known as instantaneous velocity. फिर से बेटा आपके पास क्या होगा? एक सम पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे हम, एक बड़े ड्यूरेशन की बातें नहीं करेंगे। पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो टाइम इंटरवल होगा इनफाइनिटेसिमली स्मॉल होगा। स्मॉल टाइम में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, एक रेशियो क्या कहलाएगी आपके पास है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड रीडिंग विल, सॉरी यूनिट विल बी सेम, मीटर पर सेकंड। इट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर? Okay. Now we will discuss about the next question. Difference between speed and velocity. Difference between speed and velocity. First point, very simple. What is speed? It is the ratio of distance covered to the time taken, or simply we can say distance covered per unit time. Distance covered per unit time. And what is velocity? It may be defined as the displacement covered per unit time. As we already discussed, distance is a scalar quantity, therefore speed, it is a scalar quantity. Velocity, displacement is a vector quantity, therefore velocity, it is a vector quantity. हमने क्या बताया था बेटा? डिस्टेंस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, therefore speed, if particle moves, speed or average speed is always a positive quantity. डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था बेटा आपके पास? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो ये जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा आपके पास? वेलोसिटी may be positive, negative or zero. Clear? What is speed? It is the distance covered per unit time. What is velocity? Instead of distance we will use here displacement. Displacement covered per unit time. अब हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी क्या होगा आपके पास? स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या था आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होगा आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी होगा। हमने क्या पढ़ा था? यदि कोई पार्टिकल मूव करता है, यदि मूव करेगा तो डिस्टेंस क्या है? कुछ ना कुछ तो होगा अपने पास, वो पॉजिटिव क्वांटिटी, अमाउंट होगा अपने पास, अमाउंट जरूर मिलेगा। जब डिस्टेंस पॉजिटिव है तो स्पीड भी क्या मिलेगा आपके पास? पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और में भी जीरो। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा आपके पास? वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और में भी जीरो। क्लियर? This is all about speed and velocity. Clear beta? Okay. Now next term is acceleration. What is acceleration? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Acceleration may be defined as the rate of change of velocity, or simply
तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी सेम लैंग्वेज पे बेटा आपके पास ये इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये जो नया जो आपके पास कंसेप्ट है ये क्या कहलाएगा आपके पास एक्सेलरेशन कहलाएगा। एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल a which is equal to change in velocity divided by time taken, that is dv by dt, or we can say delta v by delta t। पर इस dv change in velocity, वेलोसिटी में से बेटा वेलोसिटी को लेस करेंगे, फाइनल माइनस क्या मिलेगा आपके पास वेलोसिटी मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट क्या होगी बेटा आपके पास सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। There is equal change in velocity, if there is equal change in velocity in equal interval of time, if there is equal change in velocity in equal interval of time, then acceleration is said to be uniform acceleration। means बेटा हमने फिर से लाइन कंसीडर की, सपोज करो वन लाइन लीनियर मोशन आपके पास पॉइंट ए पॉइंट बी, या आपके पास मिड पॉइंट है। पहला जो हमने a1 a2 पार्टिकल a से a1 पे बेटा कितनी वेलोसिटी से गया, हमने मान लिया ये 1 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना कंसीडर किया इसने 1 मीटर, सॉरी 1 सेकंड। ए से ए डैश कितना वेलोसिटी चेंज हुआ 1 मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन कितना बेटा आपके पास 1 सेकंड। फर्दर a1 टू a2 अगेन चेंज इन वेलोसिटी कितना बेटा 1 मीटर पर सेकंड, एंड टाइम टेकन इज अगेन 1 सेकंड। मींस इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या बेटा यहाँ पे हमने मान लिया पार्टिकल रेस्ट पे है, तो पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 मीटर पर सेकंड है, और नेक्स्ट 1 सेकंड में ये कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास 2 मीटर पर सेकंड, और नेक्स्ट में कितनी होगी बेटा आपके पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे भी टाइम कंज्यूम कितना होगा बेटा आपके पास 1 सेकंड। मींस इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ईच सेकंड में बेटा जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है वो कितना होता है आपके पास 1 मीटर का आता है, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड का आता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म acceleration. What is non-uniform acceleration? Unequal change in velocity in equal interval of time. सेम स्टेप बेटा अपने पास हमने फिर से वन लीनियर मोशन ऑनलाइन में कंसीडर किया A1 A2 A3 एंड A4, these are the positions। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल इनिशियली कैसा बेटा आपके पास रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी कितनी होगी उसके अपने पास 1 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग का जो अपने पाथ जो फॉलो किया उसने फॉलो किया अपने पास ये 1 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे कितना बन गया बेटा आपके पास, ये हमने टाइम ही कंज्यूम कर लिया, सॉरी कंसीडर किया 1 सेकंड। तो A डैश के ऊपर या A1 के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा आपके पास है 1 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या कंसीडर किया बेटा हमने, सपोज के यहाँ पे
जब पार्टिकल कहां पे पूछता आपके पास A2 के ऊपर, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है 3 मीटर पर सेकंड, यानी पहले एक सेकंड में कितने मीटर कितना वेलोसिटी का चेंज है बेटा 1 मीटर पर सेकंड का, नेक्स्ट में कितने का चेंज होगा बेटा फाइनल माइनस, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंज हुआ वो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ बेटा, यहाँ पे हमने मान लिया 5 मीटर पर सेकंड है, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में कितने का चेंज होगा बेटा अपने पास 2 मीटर पर सेकंड का। मींस देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी अनइक्वल चेंज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो ये एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा बेटा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? Uniform acceleration, if there is equal change in velocity in equal interval of time, then acceleration is said to be uniform acceleration, and if there is unequal change in velocity in equal interval of time, then this is known as a non-uniform acceleration. Clear बेटा? Equal change, equal time है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास uniform कहलाएगा, और unequal change in equal time interval है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास non-uniform कहलाएगा। Clear बेटा? Okay. Next one. Positive acceleration and negative acceleration. These are the parts of non-uniform acceleration. If there is increase in velocity, if there is an increase in velocity with respect to time, then the acceleration produced is known as a positive acceleration. Suppose हमने फिर से बेटा 1 डायमेंशन मोशन कंसीडर किया, A, B, C, D। पहला जो स्टेशन है बेटा यहाँ पे हमने मान लिया पार्टिकल इनिशियली रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट पे तो वेलोसिटी कितनी बेटा आपके पास 0 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बेटा। जब पार्टिकल बी पे पहुंचता तो टाइम कंज्यूम किया इसने 1 सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी बेटा मैंने मान ली 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी बेटा, हमने पार्टिकल फिर से 1 सेकंड कंसीडर किया, सी के ऊपर पहुंचता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी बेटा हमने मान ली यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे हमने कितनी कंसीडर की बेटा 9 मीटर पर सेकंड, और अगेन टाइम कितना बेटा 1 सेकंड। अब यहाँ पे हम फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेंगे, ए से बी के ऊपर चेंज कितना बेटा 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, यहाँ पे क्या बेटा आपके पास मीटर पर सेकंड, तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा बेटा आपके पास 5 माइनस 2 मीन्स 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट कितना आएगा बेटा आपके पास 9 माइनस 5 मीन्स 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बेटा आप ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है एक्सेलरेशन भी क्या आपके पास इंक्रीज होता जा रहा है। ये क्या कहलाएगा आपके पास, इफ देयर इज ए इंक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। और फर्दर यदि बेटा वेलोसिटी ही क्या आपके पास डिक्रीज होती जाए, हमने कंसीडर किया सपोज करो जब भी हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं इनिशियली वेलोसिटी हमने कितनी कंसीडर कर ली 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट इंस्टेंट के ऊपर नेक्स्ट सेकंड में कितनी गई बेटा 9 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट पे क्या होगा बेटा 8 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट पे क्या होगा बेटा 7 मीटर पर सेकंड। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी तो हम फाइनल माइनस इनिशियल जो करेंगे ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी आपके पास है एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। इसमें ये जो वैल्यू होगी हमने इनिशियल वैल्यू मानी बेटा u और फाइनल वैल्यू मान ली v। हर एक केस में क्या होगा बेटा यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए v मस्ट बी ग्रेटर देन u। तो जो भी एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा बेटा चेंज इन वेलोसिटी मींस v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, change in velocity divided by time taken. If v is greater than u then this quantity must be positive quantity। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा बेटा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होगी मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपके पास ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपके पास कम होगी। अब इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा आपके पास चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब u की वैल्यू ज्यादा है तो बेटा ये वैल्यू कैसे आएगी आपके पास नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्लियर? What is positive acceleration? If there is increase in velocity with respect to time, then this type of acceleration is known as a positive acceleration. And if there is decrease in velocity with respect to time, then this type of acceleration is known as a negative acceleration. Clear, beta? Okay.